Okay, so the third question of this type is the two copper rod and one steel rod together support a load as shown in the figure. ठीक है. So ये load है, the P that is been given here is been what students is been the load here. This load is supported by copper. दो copper की steel है and in between there is a steel. Okay, दो copper है and one steel is there. ठीक. The stresses in copper and steel are not to exceed. Okay. So here stresses की value ने दी है. It is just given that limitation given है. That copper or steel में what should not exceed which value 75 value exceed नहीं होनी चाहिए for copper and for steel 150 should not exceed. What we have to do here students, we have to find here the safe load that can be supported. Okay, we have to find the safe load that can be supported, मतलब P find करना है. But one more thing has been given that the modulus of elasticity for the steel is twice that of what students copper. ठीक है, so इसका मीनिंग क्या हुआ? What is the meaning of this? चलिए, so stresses in copper should not exceed. Okay, so it should not exceed what? 75 megapascal. मतलब 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर and it should not exceed steel it should not exceed which value 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब जो वैल्यू आप कंसिडर करोगे स्ट्रेस के लिए it should be what dear students, it should be less. ठीक है, लेस का ही वैल्यू कंसिडर करना है. एंड देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील. ओके, सो मॉड्यूलस फॉर ऑफ इलास्टिसिटी for steel is twice that of copper. So twice that of what student? Twice that of copper is been given. Okay, so I hope that you are understanding this question. हमें find out क्या करना है? What we have to find out students? We have to find out here the value of a safe load. ठीक, so first thing first, let us calculate the area here. Area क्या है, कितना है, that we will see. So now we will first of all write for copper and then we will write for steel. ठीक है, सो कॉपर का फॉर्मूला बताइए. ए ऑफ कॉपर विल बी व्हाट? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. करेक्ट है, पाई बाय 4 इंटू व्हाट डियर स्टूडेंट्स? डी स्क्वायर. बट कितना कॉपर है? दो कॉपर है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 इंटू पाई बाय 4, व्हाट इज डी हियर? 40. 40 का स्क्वायर. ओके, सो द एरिया ऑफ कॉपर, द एरिया ऑफ कॉपर बताइए कितना है? 2 इंटू पाई बाय 4. So you have to do the calculation very properly students. Okay, yes, the answer turns out to be 2513. Very good. 0.27 mm square. ये हो गया कॉपर के लिए. Perfect, this is for copper. In the same way, length of copper बताइए. What is the length of copper here? Length of copper is how much? 200 mm. So I will write here 200 mm. Okay, perfect. Now we will see for steel. Area of steel, area of steel एक ही steel है, so pi by 4 d का square, d is how much? 50. So pi by 4 50 का square, so that will be how much dear students? बताइए. pi डिवाइड by आपको 4 करना है into 50 का square. Okay, so the answer is 1963. Very good, 1963.49 mm square. At this speed you have to calculate students. So स्टील का एरिया भी हमने फाइंड किया. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया एंड देन टेल मी द लेंथ ऑफ स्टील. लेंथ ऑफ स्टील बताइए. हु इज गोइंग टू टेल मी कि भाई लेंथ ऑफ स्टील कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टील हियर? लेंथ ऑफ स्टील कितना है? लेंथ ऑफ स्टील टोटल कितना हो गया? परफेक्ट, 300. वेरी गुड. सो टोटल लेंथ कितना है? 300. सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर 300 mm. 300 mm is the answer. Okay, fine, done, great. So now we will start with our step by step methodology. Step by step method से आगे जाते हैं. So we all know that deformation in steel. Okay, deformation in composite member या strain in composite member आप लिख सकते हो. Deformation in which member? Composite member. We have to find out P here. First of all we have to find out what students? P आपको find करना है.
deformation in composite member. Okay, so we all know deformation in steel will be equals to deformation, correct? So uska formula kya tha bataiye, what was the formula here dear students? So we'll see for steel here, so sigma s upon es, है ना? So we'll consider one for, okay, one और two, कौन सा भी आप कैसे भी कंसिडर करो. So मैं s और s से कंसिडर करूंगा. Sigma s upon es will be equals to what student? Sigma c upon ec. But sir, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट है. लेंथ क्या है? डिफरेंट. सो आई हैव टोल्ड यू, वी हैड रिटन डाउन द फॉर्मूला. अगर लेंथ डिफरेंट है तो लेंथ मल्टीप्लाई कीजिए. what you should add, what should multiply here, sorry, you should multiply here the length. So जो sigma upon e का जो फॉर्मूला था, that will get changed to what students? Sigma s into ls upon es equal to sigma c upon ec into lc. Perfect. So let us put down the value. Sigma s, ls steel का कितना था? 300, 300. Okay, so E of steel was given as what students? 2 times ना, 2 times of EC दिया था. Let us see, let us check. देखिए 2 times of EC was given equals to sigma C as it is. LC था सिर्फ 200, 200 EC was as it is. So ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है. 300 will go here, it will get divided. So sigma S will be what students? सिग्मा C इंटू 200. तो ऑलरेडी यहां पर है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. सो इंटू 2 होल अपॉन दिस 300 विल कम हियर, इट विल गेट डिवाइडेड. विल टेक हियर सिग्मा S इक्वल टू 200 इंटू 2 कितना? 400. सो 400 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए. सो 400 डिवाइडेड बाय 3, यू विल गेट डाउन, यू विल गेट द आंसर. ओके, 1.33 सिग्मा सी, ये आपका आंसर है. आई होप यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, आई होप यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. बट सर अभी तो सिग्मा एस और सिग्मा सी भी पता है. वी हैड सॉल्व 2 क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन में सिग्मा एस और सिग्मा सी दिया था क्या स्टूडेंट्स? नो, इट वाज नॉट गिवन. इट वाज नॉट गिवन. नाउ इट इज बिन गिवन. सो चलिए स्टेप बाय स्टेप मेथड. सो ध्यान दीजिए, व्हेन सिग्मा एस, दोनों भी स्ट्रेस आपको यूज करना है. व्हेन सिग्मा एस इक्वल्स टू, सिग्मा एस कितना है भाई? 150. व्हेन सिग्मा एस इक्वल्स टू 150, आप फाइंड क्या करो? सिग्मा सी फाइंड करो. ये जो सिग्मा सी का जो आंसर आएगा वो 75 से कम आना चाहिए. लेट अस सी. सो सिग्मा एस 150 डालो इक्वेशन 1 में. सो इक्वेशन 1 becomes, I will write down what dear students? Equation 1 becomes. ध्यान दीजिए, स्ट्रेस दिया है तो डायरेक्टली स्ट्रेस नहीं डालना है आपको. यू हैव टू क्रॉस चेक. सो सिग्मा एस कितना है? 150. सो 150 इक्वल्स टू 1.33 इंटू सिग्मा सी. सो ये 150 1.33 वहां पे जाके डिवाइड हो गया. सो व्हाट इज द आंसर गाइस? आंसर क्या आ रहा है? ओहो 112. सो सिग्मा सी का आंसर क्या है? 112.78 आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. सो नाउ इज इट ग्रेटर देन 75? देखिए. सो व्हाट शुड यू नो इज कि सिग्मा एस की वैल्यू, सिग्मा सी की वैल्यू है 75 है. सिग्मा सी शुड बी लेस देन 75, बट आपका आंसर कितना आ रहा है? 112.78. सो कैलकुलेशन में आपको सिग्मा सी की वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी पड़ेगी? ये 75 से ग्रेटर है. हेंस द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा? 112.78 या 75 कंसिडर करना पड़ेगा? जस्ट टेल मी हियर. यू हैव टू कंसिडर 75. क्यों? क्योंकि 75 से कम हुआ है, कम चाहिए. अगर ग्रेटर रहा तो यू कैन नॉट कंसिडर इट, यू हैव टू कंसिडर व्हाट स्टूडेंट? 75. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिमिलरली हमें चेक क्या करना पड़ेगा? व्हेन सिग्मा सी इक्वल्स टू, ओके, अभी सिग्मा सी की वैल्यू क्या लो? 75. अभी सिग्मा सी की वैल्यू 75 लो. क्या आपको फाइंड करना पड़ेगा? सिग्मा एस. यू हैव टू सिलेक्ट 2 रॉड्स ऑफ कॉपर, इसलिए एरिया भी तो मल्टीप्लाई किया हमने. इफ देर आर 2 रॉड्स ऑफ कॉपर, हमने एरिया भी मल्टीप्लाई किया, बट स्ट्रेस हम इंडिविजुअल का फाइंड कर रहे हैं. देखिए इंडिविजुअल का स्ट्रेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना? दो भी रहेगा, दो का मीनिंग क्या हो गया कि एक रॉड को 113 एक्ट हो रहा है, दूसरे रॉड को दूसरा. राइट है?
परफेक्ट। अभी सेम इक्वेशन हम बनाएंगे, सेम इक्वेशन हम बनाएंगे, चलिए चलिए। सो इक्वेशन वन बिकम्स गाइस, इक्वेशन वन बिकम्स, कुछ क्वेश्चन है पूछिए, यू हैव एनी डाउट, स्टिल यू हैव एनी डाउट पूछिए। परफेक्ट। सो सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस तो हमें फाइंड करना है 1.33 इंटू 75। ओके, आंसर भी आ गया, क्या बात है। आंसर कितना आ गया सिग्मा एस का, 99.99, मीन्स 100 मेगा पास्कल में कंसिडर करता हो, विच इज लेस देन व्हाट स्टूडेंट्स बताइए, 150 मेगा पास्कल। वेरी गुड, गुड आंसर। सो 150 मेगा पास्कल है। ओके, नाउ टेल मी कौन सी वैल्यू आपको कंसिडर करनी पड़ेगी सिग्मा एस के लिए। आप 150 कंसिडर करोगे या 100 कंसिडर करोगे? व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू, लोवेस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वेरी गुड, आप क्या कंसिडर करोगे, 100 मेगा पास्कल, यू आर गोइंग टू कंसिडर 100 मेगा पास्कल। ओके, सो ये सिग्मा एस की वैल्यू हो गई। फिर से एक बार मैं आपको ये बताता हूं, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, इफ स्ट्रेस इज बीन गिवन, तो एक स्ट्रेस ये इक्वेशन में डालो और दूसरा स्ट्रेस फाइंड करो, अगर वो ग्रेटर आया तो स्मॉलर वैल्यू लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया इट शुड नॉट एक्सीड 75 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो 75 भी चल जाएगा। एंड देन पुट डाउन द अदर स्ट्रेस वैल्यू एंड देन फाइंड आउट सिग्मा एस गाइस। ठीक है, सिग्मा एस कितना आया, 100 मेगा पास्कल। सो अभी फॉर्मूला में पुट करते वक्त, पी फाइंड करते वक्त, सिग्मा सी की वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा मैं अभी, व्हाट आई विल कंसीडर 75, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ सिग्मा एस आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर, आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर 100 मेगा पास्कल। ओके, परफेक्ट। सो लेट अस गो हियर, लेट अस सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें फाइंड करना है पी, लोड शेड है ना, लोड, टोटल लोड फाइंड करना है कि लोड शेड फाइंड करना है मिया, टोटल लोड तो दिया है ना, क्या फाइंड द सेफ लोड, ओके टोटल लोड ही फाइंड करना है, सेफ लोड हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो उसका फॉर्मूला बताइए, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला गाइस, P इक्वल्स टू पी एस प्लस पी सी। हमें ये P फाइंड आउट करना है, पी एस मीन्स व्हाट, सिग्मा एस इंटू ए एस, प्लस पी सी मीन्स व्हाट, सिग्मा सी इंटू ए सी। ठीक, सिग्मा एस, सिग्मा एस की कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 100, 100 सिलेक्ट कीजिए, इंटू व्हाट वाज द स्टील एरिया, स्टील का एरिया बताइए, 1963.49, सो 1963.49 प्लस सिग्मा सी, सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी 75 कंसिडर करना पड़ेगा, सो 75 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी स्टूडेंट्स, एसी की वैल्यू क्या है 2513.27, सो आई विल राइट डाउन हियर 2513.27. So from here you can find out the value of what students, safe load. Okay, fine. So the answer is 384.84 into 10 raised to 3 Newton. 10 raised to 3 Newton means kilonewton. So P equals to 384.84 kilonewton, नहीं लिखा तो भी चलेगा, but write it down, no worries. किलो न्यूटन, ये है आपका सेफ लोड, मतलब 385 किलो न्यूटन, इट कैन इजीली सस्टेन, इट कैन इजीली सस्टेन 385 किलो न्यूटन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा स्ट्रेस का, दैट हाउ यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इफ सच क्वेश्चन इज देयर, where your stress is been given, okay, there you have to find it. Okay, perfect. एनी डाउट इन दिस, डाउट है ये क्वेश्चन में? नो, ठीक। सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, वी विल टेक टाइम टू सॉल्व इट, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो, डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, लेट अस सी हाउ इट टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन, ए सॉलिड स्टील बार 500 mm long and 70 mm in diameter is placed inside an aluminum tube having 75 mm inside diameter and 100 mm outside diameter. Stop here. First thing first, you have to know how to draw the diagram. Okay, so diagram is compulsion here. Diagram से क्या होगा students, diagram से picture clear होगा that
what we have to do, how we have to solve it. Okay, so you should be very careful about it. ठीक है. So what we are going to do, we are going to take some diagram here. Okay. सबसे पहले देखो, सॉलिड स्टील बार है, 500 mm लॉन्ग है और 70 mm डायमीटर है. सो 70 mm का एक डायमीटर. ओके, 70 mm का एक डायमीटर निकाला मैंने. ठीक है. सो दिस इज फॉर होम, दिस इज फॉर सॉलिड स्टील बार. ये जो डायग्राम है, दिस इज फॉर सॉलिड स्टील बार. हाउ मच mm? 70 mm is placed inside an aluminium tube having 75 mm inside diameter and 100 mm outside. So solid steel का 70 था and aluminium tube का कितना है? 75. So yes, little bit bigger we have to draw here. 75. Okay. So yes, 75 हो गया students. Okay, so this is the inside diameter 75 और 100 mm उसका आउटसाइड डायमीटर हो गया. 100 mm उसका आउटसाइड डायमीटर हो गया. अरे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर दिस वन. हाँ, सो दिस इज विच बार? सॉलिड, नो. सो उसका डायमीटर कितना है? 70 mm. इन द सेम वे नेक्स्ट यू कैन सी, ये स्टील, सॉरी स्टील का था, अभी ये क्या है? एल्यूमिनियम है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर ऑफ एल्यूमिनियम? कितना दिया है? 75. 75 mm. And then we have what students? Then we have its outer diameter. Outer diameter दिया है. How much is the outer diameter here? 100 mm. 100 mm ये outer diameter है students. Okay, so I will write here 100 mm. Perfect. So this inside रहेगा steel और ये outside. Okay. So मैं सबसे पहले hatching line draw कर लेता हूँ. Means you can easily see. We will go very slowly here because you should understand each and every part of it, students. Okay. So this video can be slow, but for understanding it should be. ठीक है. So ये क्या दिया है students? This is the aluminium जो inside है. ठीक है. Aluminium दिया है. Perfect. Let us move on now. The aluminium tube is 0.15 mm longer than the steel bar. Oh ho. जो एल्यूमिनियम ट्यूब है स्टूडेंट्स, इट इज लॉन्गर देन द स्टील बार. समझ रहे हो? ये तो टॉप व्यू हो गया उसका. बट आपको अगर मैं फ्रंट व्यू पूछूं, सो हाउ टू ड्रॉ इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर कि एल्यूमिनियम ट्यूब तो साइड में है और उसके बीच में स्टील ट्यूब है, बट एल्यूमिनियम ट्यूब 0.15 mm लॉन्गर है स्टील बार से. इट इज लॉन्गर स्टूडेंट्स देन व्हाट? देन दी स्टील बार हियर. सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दैट डायग्राम. सो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम में देखो. ओके, सो इट इज एन सर्कल. ओके, सो डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर सिर्फ हम डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे. सो एक एल्यूमिनियम ट्यूब में ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ एन एल्यूमिनियम ट्यूब. ठीक है, सर्कल रहेगा ना, ये फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ. फाइन. और उसके बीच में क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज इनसाइड दैट? स्टील. बट इट इज लेस, नो. कम है डिस्टेंस में. 0.15 mm कम दिया है. 0.15 mm कम दिया है. एंड इट इज अप्लाइंग सम लोड. ठीक है, कुछ लोड रहेगा. ओके, इट इज अप्लाइंग सम लोड हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट करेक्ट? डायग्राम समझा आपको? सो टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ 500 है. देखो स्टील बार का, स्टील बार का कितना है? 500 mm. 500 mm. सो हियर आई विल राइट डाउन 500 mm. फिर से और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एज इट इज, बाद में अपने को काम में आएगा. सो द स्टील बार डिस्टेंस इज हाउ मच गाइस? द स्टील बार डिस्टेंस इज 500 mm. कितना mm है? 500 mm. और एल्यूमिनियम जो है, इट इज हाउ मच लॉन्गर? हाउ मच mm लॉन्गर? 0.15 mm लॉन्गर. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन हियर, आई विल राइट डाउन हियर 0.15 mm. 0.15 mm. ओके, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, दिस विल बी हाउ मच? 500 mm.
500 mm। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे एरिया में सर ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं, ऊपर दिखते वक्त वो एक प्लेट दिखेंगे, एक ऐसे सर्कल दिखेगा, ठीक है, और ये स्टील का है, ये स्टील है आपका, ये है एल्यूमिनियम का, एक ही है, इनसाइड और आउटसाइड है ना, 75 थोड़ा गैप रहेगा, ओके, ठीक है। एन एक्सेल लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन इज बीन अप्लाइड, ओके फाइन, सो 600 किलो न्यूटन का एक लोड हमने अप्लाई किए। A proper understanding is been needed for this question, students. देखिए 600 किलो न्यूटन is been required here, so that's why I'm going very slow here. uh, from both ends find the stresses developed in, okay, so आपको stress find करना है, find the stress developed in steel bar and aluminium tube, ठीक है, so steel bar और aluminium tube का stress find out करना है, so steel bar के लिए दिया है 220 और एल्यूमिनियम के लिए 70 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है, ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, अभी सब स्टूडेंट्स जस्ट डोंट रिमेंबर एनी फॉर्मूला नाउ, थोड़ा कंसेप्ट की ओर जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन गाइस हियर इज, व्हाट विल हैपन कि जब ये 600 किलो न्यूटन का फोर्स गिरेगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ कॉम्प्रेस होगा, 0.15 जो लेंथ है वो लेंथ क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा, एंड दिस लोड दिस प्लेटफॉर्म विल टच स्टील। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बोलिए, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि 0.15 डिस्टेंस तक स्टील में स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं, जस्ट टेल मी डियर स्टूडेंट्स कि स्टील में स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं, जब मैं 600 किलो न्यूटन लगा रहा हूं एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm, क्या स्ट्रेस डेवलप होगा व्हेन 600 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट दिस डिस्टेंस, क्या स्ट्रेस डेवलप होगा, नो, स्ट्रेस विल नॉट गेट डेवलप, क्योंकि वो टच ही नहीं हो रहा है 0.15 mm में। आफ्टर टचिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आफ्टर टचिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्ट्रेस डेवलप होगा, तभी हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तभी हम हमारा दो इक्वेशन सिग्मा अपॉन ई पी इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि ये लोड 600 लोड स्टील शेयर कर रहा है क्या, जस्ट टेल मी, एट दिस डिस्टेंस हियर क्या स्टील शेयर कर रहा है, नो, सो कभी स्टील शेयर करेगा व्हेन इट विल टच, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो आपका जो डायग्राम है डियर स्टूडेंट, सो द डायग्राम आफ्टर टचिंग विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी, आफ्टर टचिंग जो रहेगा डायग्राम, मतलब व्हाट विल हैपन, 600 जो किलो न्यूटन है इट इज गोइंग टू टच, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि सबसे पहले इट विल ओवरकम दिस डिस्टेंस एंड देन इट इज गोइंग टू टच हियर, ओके, सो इफ यू आर नॉट सीइंग इट वेल, इधर मैं एल्यूमिनियम ट्यूब का ऐसा कर देता हूं, ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, टेल मी, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज स्टूडेंट्स कि सबसे पहले लोड तो लगेगा, बट नाउ टेल मी वन थिंग, यहां का लोड 600 रहेगा या नहीं, अभी जो लोड अप्लाई हो रहा है वो 600 रहेगा या नहीं, क्या कम लोड रहेगा, टोटली वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए, सब सिर्फ न्यूमेरिकल के नहीं आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सच हार्ड क्वेश्चन, कि भाई 600 किलो न्यूटन अगर मैं पुश किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो एब्जॉर्ब करेगा, तो 600 किलो न्यूटन रहेगा क्या फोर्स, ये नहीं, वो फोर्स कम हो जाएगा, कितना कम होगा, वेरी गुड, गुड, तो कितना कम होगा दैट वी विल फाइंड, एंड उसके बाद हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर टू केस, फर्स्ट केस में हम P फाइंड आउट करेंगे कि कितना P अप्लाई होगा क्लोजिंग डिस्टेंस पे, एंड देन वी विल यूज आवर नॉर्मल वे, ठीक है, कुछ डाउट है क्या क्वेश्चन में, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इट्स ओके, अगर नहीं समझ रहा है जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, इट्स सो सिंपल कि आपको स्ट्रेसेस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और स्टील में फाइंड करना है, बट डायरेक्टली आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये 600 किलो न्यूटन जब 0.15 डिस्टेंस कवर करेगा तब उसका लोड और कम हो जाएगा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम ही एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो कम लोड लेके फिर हमको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, so since the aluminum tube is longer than the steel bar, initially stresses will be what guys, it will be induced in aluminum, if it is longer first of all it will induced in the aluminum, कितना डिफॉर्मेशन, कितना डेल्टा एल के लिए 0.15, और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम और स्टील में
डिफॉर्मेशन होगा दोनों में। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बताइए, π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, 3436.12 का स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये है आपका एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ स्टील तो एक ही है ना, π/4 डी स्क्वायर, π/4 70 का स्क्वायर। सो एस बताइए कितना है, टेल मी स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ एस π/4 इंटू 70 का स्क्वायर गाइस। सो इट इज 3848, गुड, 3848.45 mm स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ स्टील और एरिया भी दिया है, परफेक्ट, वेरी गुड। और ई ऑफ एल्यूमिनियम, ई ऑफ स्टील दिया है 220 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 220 इंटू 10⁻³ लिख लेता हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एल्यूमिनियम का कितना दिया है, 70 रिस्पेक्टिवली है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वैल्यू। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन दिस 600 किलो न्यूटन इज गोइंग टू अप्लाई, तब कितना स्ट्रेस एक्ट होगा, लेट अस सी। हाँ, केस नंबर 1 अभी हम सॉल्व करेंगे। व्हाट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व योर केस नंबर 1। केस नंबर 1 में, ओके, सो स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, आई विल जस्ट राइट हियर केस 1। सो बी विथ मी स्टूडेंट्स, विल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। हाँ, तो सबसे पहले डेल्टा एल दिया है ना। सो डेल्टा एल इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, पी एल अपॉन ए ई। डेल्टा एल 0.15 है, आपको पी फाइंड करना है कि भाई कितना लोड एक्ट होगा, तभी ये स्ट्रेस के लिए, ये चेंज इन लेंथ के लिए कितना लोड एक्ट होना चाहिए। सो लोड ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ, लेंथ बताइए लेंथ कितना होगा, दोनों का एडिशन 500 प्लस 0.15 मिस 500.15 होल अपॉन ए ई। ये ए रहेगा एल्यूमिनियम का और ई भी रहेगा एल्यूमिनियम का। व्हाट इज द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, 3436.12, 3436.12 है। सो आई विल राइट डाउन हियर 3436.12 and E of aluminium was 70 into 10⁻³, 70 into 10⁻³। So now tell me that P of aluminium will be how much? ठीक है, I will give you time for solving, solve it very properly and tell me कि आंसर क्या आएगा फोर्स का, P का आंसर। वेरी गुड, 72.13 इंटू 10⁻³ आएगा, करेक्ट है, 72.13 इंटू 10⁻³। हाँ, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इधर तो कुछ डाउट है क्या, पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। सो वी हैड फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स, वी हैड फाइंड आउट PAL, मतलब कितना लोड रिक्वायर्ड है ये चेंज इन लेंथ के लिए, 72.13। ओके, 72.13 किलो न्यूटन, मतलब अगर 72 600 में से 72.13 किलो न्यूटन आया तो ये टच हो गया। मतलब एक्चुअल पी कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी व्हाट विल बी द एक्चुअल पी हियर, क्योंकि 600 में से तो 72.13 गया। ये लोड इज, दिस लोड इज बीन देयर स्टूडेंट्स, दिस लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स, टेल मी, ये जो लोड है that 72.13, when this load will act it will then come downwards, मतलब 600 में से 72.13 लोड तो गया। So how much will be the load it will act when it is at the closing gap, means load on the member, just wait for a minute, huh, very easy, load on the member after closing gap, मतलब क्लोजिंग के बाद स्टील और
एल्यूमिनियम में लोड कितना है? सो हु विल टेल मी हाउ टू कैलकुलेट, हु विल टेल मी? चलिए देखते हैं। 72.13 किलो न्यूटन से ये ऐसा हो जाएगा, दिस बी डायग्राम। सो अगर 72.13 से ये डायग्राम बी डायग्राम हो गया, तो लोड कितना एक्ट होगा? लोड फिर कितना एक्ट होगा? 600 में से 72 तो गया, सो हाउ मच विल बी द लोड स्टूडेंट्स? 600 में से 72.13 लोड तो गया किलो न्यूटन का, so that is how much load will act then? 527.86 किलो न्यूटन, मतलब 527.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वेरी गुड। 600 माइनस 72, ये करेक्ट है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मीन्स यहां पर लोड कितना एक्ट होगा? व्हाट विल बी द लोड एक्टिंग हियर? द लोड एक्टिंग हियर विल बी 527.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि 72.13 किलो न्यूटन तो ये एल्यूमिनियम ने ही खा लिया, क्योंकि डिस्टेंस था 0.15। मतलब एल्यूमिनियम और स्टील में कितना लोड एक्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? 527.86। एंड फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। अभी एक्चुअली न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ तीनों का लेंथ क्या हुआ बोलो? नाउ हु विल टेल मी द लेंथ हियर? अभी लेंथ कितना हो गया रहेगा बताइए? हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर? अभी लेंथ कितना है ये लोड के लिए? व्हाट विल बी द लेंथ हियर फॉर दिस लोड? परफेक्ट, वेरी गुड आंसर, 500, क्योंकि 0.15 तो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। 500 mm। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। मतलब लेंथ भी सेम है। सो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इन composite member। Deformation in which member, dear students? Composite member। I hope that you are understanding this very very properly। ठीक है, ये हो गया आपका डिफॉर्मेशन कंपोजिट मेंबर के लिए। सो सबसे पहले स्टील था और एल्यूमिनियम था। सो लेट अस राइट सिग्मा स्टील अपॉन ई ऑफ स्टील इक्वल्स टू सिग्मा एल्यूमिनियम अपॉन ई ऑफ एल्यूमिनियम। सर आपने लेंथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लेंथ तो क्या हुआ, लेंथ तो सेम ही तो हुआ, 500 mm। लेंथ इज सेम हियर डियर स्टूडेंट्स। सो सिग्मा एस एज इट इज, ई एस कितना था? 220 इंटू 10⁻³ सिग्मा ए एल, सिग्मा ए एल अपॉन ई एल कितना था रे? 70 ना। 70 इंटू 10⁻³, 10⁻³ 10⁻³ कैंसल। सिग्मा एस इक्वल्स टू 220, यहां पर जाके डिवाइड हो गया। सो 220 डिवाइडेड बाय 70 इंटू व्हाट स्टूडेंट? सिग्मा ए एल। देन टेल मी द आंसर ऑफ सिग्मा ए एस। सिग्मा ए एस का आंसर क्या आएगा? फ्रॉम हियर आर केस टू स्टार्ट। ये हो गया केस वन। अभी केस टू स्टार्ट हो रहा है। केस वन में हमने फाइंड आउट क्या किए? हमने फाइंड आउट किए कि भाई कितना लोड एक्ट हो रहा है when the three are in composite member, correct? Perfect। so sigma s की वैल्यू बताइए। 220 डिवाइडेड बाय 70 डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड। 3.14। सो 3.14 सिग्मा ए एल। आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, सो आई विल राइट डाउन दिस इक्वेशन एज व्हाट स्टूडेंट्स? इक्वेशन एज 1। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, 3.14 इंटू सिग्मा ए एल। वेरी गुड। अभी सेकंड क्या था बोलो? सेकंड था लोड शेयर्ड, नो? लोड शेयर्ड बाय ईच मेंबर। चलिए लिख लेते हैं, लोड shared by each member। So our formula, फॉर्मूला बताइए क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? लोड शेयर्ड बाय ईच मेंबर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू PS लोड बाय स्टील एल्यूमिनियम, P ऑफ एल्यूमिनियम।
सो P इक्वल्स टू PS का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा S इंटू AS। PAL का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा AL इंटू A ऑफ AL। Now, what is the value of P? The P value is 72.86 into 10 raised to 3. Most of the students क्या करते हैं, P का वैल्यू डायरेक्ट 600 ले लेते हैं और टोटल योर आंसर विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि क्लोजिंग गैप के बाद ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तब तक तो स्टील में स्ट्रेस होगा ही नहीं 0.15 mm तक अगर आया तो। ठीक है, परफेक्ट। So P is how much, students? 527.86. So I will write down here 527.86 into 10 raised to 3 sigma S. Sigma S is how much times sigma L? 3.14. 3.14 times sigma AL into area of AL भी हमने फाइंड किए थे, क्या था? 3436.12 प्लस सिग्मा AL एज इट इज एरिया, नहीं नहीं AS का था ना 3848। ओके ओके ओके, अच्छा हो गया अभी समझा, नहीं तो फिर डिफिकल्टी हो जाता। एरिया ऑफ अ स्टील फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यस, एरिया ऑफ स्टील देखो 3848.45, 3848.15 प्लस सिग्मा एल्यूमिनियम इंटू AL, ये था AL 3436.12। So now one equation, only one unknown is there. You can solve it in calculator. Calci FX 991 ES लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 34.01 मतलब 34 मेगा पास्कल है, 34.01, वेरी गुड। तो 34.01 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल का मीनिंग क्या हुआ? न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ इफ आई हैड फाइंड आउट सिग्मा AL, सिग्मा S मिलेगा। सिग्मा S का क्या था रिलेशन बताइए? 3.14 टाइम्स सिग्मा AL। सिग्मा S का आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डियर स्टूडेंट सिग्मा S? टेल मी। 3.14 मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 06.8। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, अगर मैं फाइनल आंसर लिख लूं, हाँ, इफ आई विल राइट योर फाइनल आंसर कि सर स्ट्रेस इन स्टील जो है, टोटल जो स्ट्रेस इन स्टील है वो कितना है, देन व्हाट योर आंसर विल बी? स्ट्रेस इन स्टील कितना है, व्हाट योर आंसर विल बी? सर 106.8। ठीक है भाई, समझ लिया, ये तो समझा आपका कि ये तो करेक्ट है। बट अगर मैंने आपको पूछा कि स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम कितना है, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम कितना है, व्हाट विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स? सिग्मा AL का आंसर क्या रहेगा? 34.01 करेक्ट है? 34.01? नो, ये आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि वाई? वो आंसर क्यों रॉन्ग होगा बताइए? क्योंकि ये 34.01 जो मेगा पास्कल आया है वो तो कांटेक्ट के बाद आया है। कांटेक्ट के पहले भी तो स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस किधर फाइंड किया हमने? आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टील का जो स्ट्रेस आया है वो तो करेक्ट है भाई साहब, 106.8 मेगा पास्कल, वो तो ठीक है, वो तो समझा कि सर ये लोड होके ही वो स्ट्रेस में आया। बट स्टील के जो स्ट्रेस है उससे पहले ही एल्यूमिनियम का स्ट्रेस है। स्टील ने जो स्ट्रेस लिया था उसके पहले तो एल्यूमिनियम ने भी तो लिया था। सो एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेस है वो तो ऐड होना चाहिए। मींस यहाँ पे आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये लेंथ के लिए कितना स्ट्रेस हो गया। सो सिग्मा AL का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन AL, वो 0.15 डिस्टेंस के लिए तो भी स्ट्रेस एक्ट होगा ना, दैट वी हैव टू फाइंड। सो PAL कितना है? 72.13 इंटू 10 रेज टू 3 अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 3436.12। सो टेल मी स्टूडेंट, सिग्मा AL कितना आया? सर ये स्ट्रेस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि जो टोटल स्ट्रेस एक्ट होगा
वो 0.15 डिस्टेंस का होगा और रिमेनिंग 500 का। रिमेनिंग 500 का तो स्ट्रेस हमने फाइंड आउट किए, वो था 34.01। बट 0.15 के लिए कितना स्ट्रेस था वो कौन फाइंड करेगा? इसलिए हमने क्या किए कि ये लोड के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 20.99 मतलब 21 में लिख सकता हूँ, 21 में लिख सकता हूँ, 21 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो टेल मी वन थिंग, अभी थोड़ा लॉजिकली सोचो जरा कि 0.15 mm तक उसके पास कितना स्ट्रेस है? 21। और जब 500 एक्ट होगा तब उसके पास 34 रहेगा। सो टोटल कितना स्ट्रेस एक्ट होगा एल्यूमिनियम में, बताइए? ये 500 mm के लिए 34 है और 0.15 के लिए 21 है। सो कौन बताएगा? हु विल टेल मी कि टोटल स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम क्या हो गया? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स? दोनों का एडिशन, वेरी गुड, कीप इट अप। दोनों का एडिशन होगा 55। क्या बात है! दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है। सो जो 34 था वो और 21, सो टोटल मिला के जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है दैट इज हाउ मच? 55 मेगा पास्कल। दिस इज द फाइनल आंसर। I hope that you have understood this question, guys. A very important question, a very challenging question, which will open up your mind. कि सिर्फ न्यूमेरिकल या वैल्यू डाल के सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सोचो, सोच समझ के आप करो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है? ओके, सो बहुत सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। फर्स्ट कंसेप्ट जो था दैट 72 किलो न्यूटन में है ना, 72 किलो न्यूटन वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये जो प्लेटफॉर्म है वो एल्यूमिनियम, स्टील और ये एल्यूमिनियम को टच करेगा, मतलब एल्यूमिनियम और स्टील को टच करेगा। स्ट्रेस फाइंड आउट करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं 500 mm के लिए, बट 0.15 mm के लिए भी तो स्ट्रेस एक्ट हो रहा था। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। सो इसलिए हमने क्या किए कि एक सेपरेट सिग्मा ए एल फाइंड किए फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर द लोड ऑफ 72.13। और दोनों को क्या किया स्टूडेंट्स? दोनों का एड ऑन किए। ठीक है? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड दिस वाज आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली स्टूडेंट्स। सो इन दिस वे बीइंग एन ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ए चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑल्सो। मीन्स यू विल बी रेडी फॉर इट, विल बी रेडी फॉर द चैलेंज। आपको करना क्या है, इतना सारा क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो फिर से क्वेश्चन एक नोटबुक में सॉल्व करो, देखो क्या है। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डाल देता हूँ, ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ में आपको डाल देता हूँ। मीन्स लास्ट में व्हेन योर यूनिट 1 इज कंप्लीटेड यू विल हैव दी क्वेश्चंस, और आपके पास सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली रहेगा, और फिर उसका प्रैक्टिस करना है। आफ्टर दैट प्रैक्टिस करो दूसरा क्वेश्चन के लिए, कीप ऑन डूइंग दैट। इन सेम में आपको कैसे भी करके अबाउट 12 लाना ही है। वी हैव टू एम फॉर हाई देयर, मीन्स एंड सेम थोड़ा इजी जा सकता है। एंड सेम में तो सोचो आप 4 यूनिट है, एंड आई एम अगेन एंड अगेन एंड अगेन टेलिंग यू गाइस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर। इट वाज नाइस टीचिंग यू, थैंक यू सो मच।